لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم عاشور کے جلوس، 10 محرم الحرام کے جلوسوں میں عزاداروں کی بھرپور شرکت، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ، مختلف شہروں میں موبائل فون سروس معطل۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی اور حق و صداقت کی خاطر اہل بیت اور دیگر جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا شہدائے کربلا کو خراج تحسین اپنے پیغام میں کہا کہ واقعہ کربلا میں ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ یوم عاشور حق اور باطل کے لازوال معرکے کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام، کہا سیدنا امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے باطل کی اطاعت سے انکار کیا۔ شہادت امام حسین امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے۔ امام حسین اور ساتھیوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کو جلا بخشی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ یوم عاشور پر پیٹے رہنا فیاض الحسن چوہان کا پیغام، کہا عظیم ترین قربانی حق و باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے تھی۔ یوم عاشور پر پنجاب بھر میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریاں پھیلنے لگی، سانپ کے کاٹنے کے واقعات بڑھنے کا خدشہ۔ ہیلتھ ایڈورٹائزری کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں میں پینے کے پانی کی کمی، آبی آلودگی، غذائی قلت دیکھنے میں بھی آئی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کی شرح 2.53% ریکارڈ۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کی تشخیص کے لیے 16,648 ٹیسٹ کیے گئے، 421 افراد وائرس میں مبتلا پائے گئے۔ السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر۔ میں ہوں ہنا ظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کر لیتے ہیں۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے ڈیوٹی رپورٹر۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ جی، آج پاکستان سمیت لاہور میں بھی محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام رنج و غم سے منایا جا رہا ہے۔ آج اس وقت میں موجود ہوں موچی دروازہ میں، جہاں پر آج لاہور کا مرکزی جلوس جو ہے رات نثار حویلی سے برآمد ہوا ہے۔ یہ اپنے مخصوص راستے سے ہوتا ہوا آج شام گام کربلا میں اختتام پذیر ہوگا۔ جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو تقریباً لاہور میں 127 کے قریب امام بار گئے ہیں، چھوٹی بڑی اور خواجگان ہیں، جہاں پر یاد امام حسین میں عزادار حسین مجلس سے منعقد کرتے ہیں اور غم حسین میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلہ جو مرکزی جلوس ہے وہ میرے پیچھے رواں دواں آپ دیکھ رہے ہوں گے، جیسے میرا کیمرہ مین دکھائے تو وہ رواں دواں، اور یہ شام آج مغرب کے وقت گام کربلا میں جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ آج اس سلسلے میں جو ہے سیکورٹی کے بہت اچھے اور بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم نے جو دیکھا ہے یہاں پر آتے ہوئے کہ 3 لیئر دیکھی ہم نے۔ پہلے لیئر میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیکنگ کی جاتی تھی، سنیپ چیکنگ کی جاتی، تمام افراد کے بیگ چیک کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسری لیئر میں واک تھرو گیٹ لگے ہوئے تھے، جہاں پر تمام جو عزادار آ رہے تھے ان کو چیکنگ کی جاتی تھی۔ اس کے بعد جو سیکیورٹی کے انتظامات اور مختلف ادارے ہیں یہاں پر اپنی سیکیورٹی جو بھرپور انداز میں جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے پیچھے دیکھیں کہ ابھی نماز ظہران ادا کی ہے اور اس کے بعد اب یہ جلوس جو مختلف
حامد خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جہلم میں بھی 10 محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے احسان جنجوا سے۔ احسان اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، آج اگر جہلم میں 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ تقریباً 51 مجالس اور 30 جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ امام بارگاہ زینیہ سے جلوس برآمد ہو چکا ہے اور اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا میٹھک مراد بخش میں وہاں پہ جتنے چھوٹے بڑے جلوس ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد وہ وہاں پہ مرکزی امام بارگاہ میں جا کے شامل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سیکورٹی کے حوالے سے تو ڈی پی او جہلم کی ہدایت کے مطابق یہاں پہ ڈسٹرکٹ جہلم میں تقریباً 1500 سے زیادہ اہلکار اپنے ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور کسی نہ بہت شکریہ احسان جنجوا آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہداد کوچ میں بھی 10 محرم الحرام کے جلوسوں میں عزاداروں کی بھرپور شرکت۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبدالحمید بھٹی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ دنیا بھر کی طرح شہداد کوٹ میں بھی 10 محرم الحرام بڑی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ میں اس وقت کمبر شہداد کوٹ کی کوٹو موٹو چوک پہ موجود ہوں، جہاں پر عزاداروں کے ماتمی جلوس نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور ہر گلی اور محلوں میں یا حسین کی صدائیں گونج اٹھی ہیں۔ اور یہاں پر بات کرتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے تو سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی ہے۔ داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں اور ناخوشگوار واقعے کو نمٹنے کے لیے رینجرز کے جوان بھی طلب کیے گئے ہیں اور رینجرز کے جوان اسٹینڈ بائی اسٹینڈ ہیں۔ اور یہاں پر موسم کے حوالے سے بات کریں گے، یہاں موسم انتہائی شدید گرم ہے اور عزاداروں اور مومنین کے لیے شہر کے مختلف راستوں پر ٹھنڈی اور میٹھی سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں۔ یہاں شہداد کوٹ میں چاروں اطراف سے روڈ ہیں جو کہ کمبر شہداد کوٹ، رتو دیرو، پھپھو سید خان، گڑی خیرو، ان راستوں سے عزاداروں کے ماتمی جلوس آئیں گے جو کہ شام 5 بجے سارے یہاں کوٹو موٹو چوک پر آ کے ایک سمندر کی شکل اختیار کریں گے اور امام حسین علیہ السلام سے اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے زنجیر زیبی کی جائے گی اور شیعت علماء کے یہاں خطاب بھی ہوگا۔ اس کے بعد تقریباً 11 یا 12 بجے۔ بہت شکریہ عبدالحمید بھٹی آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سردار حمید سے۔ جی سردار آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح یوم عاشور شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس آج صبح 8:30 بجے حسینی امام بارگاہ علمدار روڈ سے برآمد ہوا، جو اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت باچا خان چوک پر موجود ہے۔ جلوس کی قیادت بلوچستان شیعہ کانفرنس کے صدر حاجی جواد رافع صاحب کر رہے ہیں۔ جلوس میں شریک عزادار سینہ کوبی، زنجیر زنی اور نعت خوانی کر رہے ہیں۔ جلوس کی اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 3000 کے قریب ایف سی، پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ جلوس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی کی جا رہی ہے، فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ آج کوئٹہ شہر میں موبائل سگنل بھی بند کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے پیش نظر۔ جلوس بعد مغرب۔ سردار حمید اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ شیخوپورہ میں بھی یوم عاشور کے موقع پر عوام کی بڑی تعداد کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمود بیگ سے۔ محمود اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج ماہ محرم الحرام میں جہاں نواسہ رسول اور ان کے رفقا کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، وہیں قبرستانوں میں عاشقان مصطفیٰ اور ایسے لوگ جن کے والدین عزیز و قرب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی قبروں پر مٹی ڈالنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں، پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ یہاں کیا لینے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ 10 محرم نواسہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے قربانیاں دیں، شہداء کربلا نے جو قربانیاں دیں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنے پیاروں کی قبروں پہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی قبروں کی دیکھ بھال کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور نواسہ رسول کی مناسبت سے، شہداء کربلا کی مناسبت سے جناب 10 محرم کو لوگ جوگ در جوگ جو ہے نا قبرستان آتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں کی صفائی ستھرائی اور پھول نچھاور کرتے ہیں۔
آج بالکل جیسا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنے عزیزوں اقارب کی قبروں پر آتے ہیں، اصحال ثواب کرتے ہیں۔ بہت شکریہ محمد بیگ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈیرہ غازی خان میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شہر خاموشہ کا رخ کر لیا، اپنے مرحومین کی قبروں پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمود امین سے۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر کی طرح آج ڈیرہ غازی خان میں بھی محرم الحرام کو احترام اور عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ آج یہاں پر شہری کافی تعداد میں اپنے پیاروں کو یاد کرنے کے لیے قبرستان پہنچے ہیں۔ یہاں پر جو اپنے پیاروں کے اوپر پھول بھی نشاور کی جا رہے ہیں اور مختلف جو دال وغیرہ بھی ڈالی جا رہی ہیں، پانی بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے انتظامیہ کی جانب سے، یہاں پر جو شہری ہیں ان کو کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ یہاں پہ جو ان کو پیاروں کی اپنی قبر بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے بڑی قیمت بھر میں مٹی یہاں کے لا کر اپنے قبر پیاروں کی بنائی جا رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں پر جو شہری کی کافی تعداد میں آج آئے ہوئے ہیں، اپنے جو پیاروں کی جو قبر ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ بارش کی وجہ سے کافی یہاں پر جو قبر ہیں محمد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ الہ آباد میں محرم الحرام میں عوام کی بڑی تعداد کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتح خانے کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے ارشد سانول سے۔ ارشد بتائیے گا۔ جی بالکل جی، ملک بھر کی طرح الہ آباد میں بھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے پیاروں کی قبروں کی صفائی ستھرائی اور لپائی کے لیے شہر خاموشہ کا رخ کر لیا ہے، جہاں وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ فاتحہ خوانی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے قبل ہونے والی بارشوں کی وجہ سے قبروں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ بارش کی وجہ سے کافی قبریں جو ہیں زمین بوس ہو چکی ہیں، جن کو شہری مرمت کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ شہری کو کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی، شہری دور دراز سے اور مہنگے داموں مٹی خرید۔ بہت شکریہ محمد آپ کا ہمیں تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ رائے ونڈ میں یوم عاشور کا جلوس کیسر سکینہ سے برآمد ہوا، پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں صلاح الدین نور کی اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح رائے ونڈ میں بھی یوم عاشور کا جلوس اپنے مقررہ وقت پر برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ کی طرف رواں دواں۔ انتظامیہ کی طرف سے جلوس کو فل پروف سیکیورٹی دی گئی۔ انتظامات کے حوالے سے کوہ نور سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس اور جلوس انتظامیہ کا کہنا تھا یوم عاشور کا جلوس رائے ونڈ میں اپنی طے شدہ روٹ کے مطابق حسینیہ امام بارگاہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اے سی صاحب رائے ونڈ کی سپرویژن ہے، اوورال ایک انسپیکٹر ایس ایچ او صاحب رائے ونڈ سٹی اور 3 سب انسپیکٹر، 3 اے ایس آئی، 9 ہیڈ کانسٹیبل اور تقریباً 60 کے قریب جو ہے نا جوان یہاں موجود ہیں۔ انتظامیہ کے حوالے سے پولیس سیکیورٹی جو ہماری انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور ہمارے جو سی او یونٹ کے ممبران ہیں، ورکر ہیں، انہوں نے اے سی صاحبہ نے سب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے، اور ہمارے جلوس میں جہاں تک ہو سکے انہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ محکمہ پولیس ہو، مقامی پولیس ہو، رینجرز ہو، تمام سیکیورٹی ادارے جس نے بھی ہمیں یہاں پہ سیکیورٹی فراہم کی ہے، انتہائی اچھی سیکیورٹی فراہم کی ہے، جس کی وجہ سے تمام ملک میں اور خصوصاً رائے ونڈ میں پرامن جلوس کا انعقاد منعقد ہوا ہے۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی اچھی سیکیورٹی فراہم کی۔ جیسا کہ آپ نے پولیس اور جلوس کی انتظامیہ کی بات سنی، جلوس انتظامیہ نے بہترین انتظامات پر تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا۔ انتظامیہ کا کہنا صلاح الدین نور کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شیخ پورہ میں بھی یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں محمود بیگ کی اس رپورٹ میں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے راہ حق میں اپنی جان، مال، عزت و آبرو اور اولاد تک
सब कुछ कुर्बान कर देने का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। मोमिनीन शोहदा करबला की याद में मुहर्रम अल हराम में मजालस, जुलूस और प्रोग्राम्स तश्कील देते हैं, जिनके लिए इंतजामिया की जानब से दाखिली व खारजी रास्तों को खारदार तारों और कनातों से बंद कर दिया जाता है। शेखपुरा में यौम आशूर के जुलूस के रास्तों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आज 56 प्रोग्राम्स, 50 जुलूस और 5 मजालस मुनक्कद होंगी। हुकूमत पंजाब की जानब से जुलूस के साथ मरहम पट्टी और तिबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। घूमना साना बड़ा तावन किया है, सारे दवाई हर जगह डॉक्टर साहब ने सारे मौजूद ने, मुहर्रम के हवाले दे नाल बहुत अच्छा तावन किया घूमने साडे नाल। ये हुकूमत पंजाब की तरफ से एम्बुलेंस सर्विस मेडिकल एड के तहत डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा जुलूस के साथ साथ अपनी मेडिकल की ड्यूटियां अदा करते हुए जारी और सारी है। DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार की जानब से फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात के हवाला से अज़ादाराने हुसैन अलैहिस्सलाम का कहना था कि ये रोज़े अशूर ही हुसैनियत की फतेह और जदीदियत की शिकस्त का दिन है, और मुहाफ़िज़ा इमामत जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया ने जिस तरह इसको दवाम बख्शा है, हम उसी सुन्नत को लेके सड़कों पे आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेखपुरे का माहौल कदरे पिछले सालों से बहुत बेहतर है। मरकजी जुलूस नमाज असर की अदायगी के बाद अपनी मंजिल की जानब रवां दवा है, जो इमाम बारगाह दरबार हुसैन जनाब पार्क पहुंचने के बाद रात गए कब्रस्तान ईदगाह करबला मोला में इख्तिताम पजीर होगा। नवासा रसूल हजरत इमाम आली मुकाम और उनके रुफ़का की मैदान करबला में पेश की जाने वाली कुर्बानियाँ। महमूद बेग की रिपोर्ट आपने जानी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लाड़काना में भी यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अलादार शर की इस रिपोर्ट में। हुसैन इसका है किरदार भी जिंदा, किरदार जो जिंदा है तो मयार भी जिंदा, मयार जो जिंदा है तो अफ्कार भी जिंदा, अफ्कार जो जिंदा तो आज़ादार भी जिंदा। अस्सलाम वालेकुम या अबादिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबादिल हुसैन। पूरे आलम इस्लाम की तरह लाड़काना में भी 10 मुहर्रम अल हराम आशूरा बहुत एहतराम और अकीदत से मनाया जा रहा है और शुहदाए करबला को क़यादत अकीदत और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों और शहीदों को पुसा दिया जा रहा है। लाड़काना में 190 जुलूस बरामद जबकि 186 मजलिस बर्पा की जा रही हैं। मरकज़ी इमाम बारगाह जालल शाह यहाँ से मरकज़ी मातमी जुलूस रवायती रस्मों से रवां दवा और मरकज़ी मजलिस अज़ाब मातमदारी शबियाए तुरबत मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास बरामद। सिक्योरिटी की बात की जाए तो लाड़काना शहर में सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं। 3500 से ज़्यादा मेल और फीमेल पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 370 रेंजर्स एहलकार भी तैनात किए गए हैं और 400 से ज़्यादा कैंपें लगा दी गई हैं। मुख्तलिफ रास्तों में रुकावटें खड़ी करके खारदार तारें लगा दी गई हैं। ट्रक, ट्रैक्टर और टैंकर खड़े करके रोडों को ब्लॉक कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ अलादात शर। टांक में 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस गरा बलूच से बरामद हुआ। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। 10 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस गरा बलूच टांक से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ज़ियारत शाह नवाज जाकर इख्तिताम पजीर होगा। 10वीं मुहर्रम का जुलूस गरा बलोच से निकल चुका है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DPO टांक। आइए उनसे बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सर 2200 की नफरी लगाई है, जिसमें तकरीबन 1650 अपने डिस्ट्रिक्ट की है, साउथ वज़ीरिस्तान की है, एलीट की है, बन्नू भरती से आई है और कुछ मिला के ये 2200 नफरी हमने लगाई है। कोशिश की है फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे और इस वक्त तमाम प्रोग्राम तकरीबन बड़े आराम से और सिक्योरिटी वाइज अच्छे जा रहे हैं। तो जो हमारे अज़ादार है, जो कम्युनिटी वाले हैं, उनकी तरफ से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल तो वो बता सकते हैं। बहरहाल हमने कोशिश की है कि जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको इन प्लेस किया हुआ है। 3 सेक्टर्स में हेल्थ डिपार्टमेंट के, रेस्क्यू 112 के हैं, हमारे TMAs के हैं, लोकल गवर्नमेंट के हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, आर्मी। DPO टांग की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, कोहिनूर न्यूज़।
पारा चनार में 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में अज़ादारों की भरपूर शिरकत। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं जावेद बंगिश की इस रिपोर्ट में। चनार समेत जिला भर में आशुराए मुहर्रम की जुलूस अज़ा सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद हो चुके हैं। पारा चनार मरकजी इमाम बारगाह से मरकजी जुलूस जुलजना बरामद किया गया है। हजारों की तादाद में अज़ादारानी सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाजवाल कुर्बानी को सीनाकोबी, जंजीर जनी और नौहों से खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस के अज़ादारों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, जहां जुलूस अज़ा की मुजरूहीन की मरहम पट्टी और इलाज जारी है। जुलूसों के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। मोबाइल सर्वे मुअत्तल कर दिया गया है। अज़ादारों के लिए जगह जगह न्याज की लंगर व पानी, दूध और चाय की सबीली लगाई गई है। हारूनाबाद में 10 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में अज़ादारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में 10 मुहर्रम उल हराम यौम अशूरा का मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मातमी जुलूस में मौजूद अज़ादारों ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश किया। मातमी जुलूस अपने रवायती और कदीमी रास्तों से होते हुए मेन फुआरा चौक पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। बाद अज़ा ज़ाकिरीन की तरफ से मजलिस अज़ा बर्पा की गई। मजलिस अज़ा में ज़ाकिरीन ने जुलूस में मौजूद अज़ादारों से खिताब करते हुए शान अहले बैत बयान की और करबला में शहीद होने वाले हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहल व याल समेत साथियों की कुर्बानियों का तफसीली जिक्र किया। ज़ाकिरीन ने शुहदा करबला पर रोशनी डालते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के मोहसिन हैं। दीन मुस्तफ़ा भी इन्हीं की कुर्बानियों का समर है। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर शबीह जुलजना की बरामदगी होते ही अज़ादारों ने सीना कुबी और जंजीर जनी करके शुहदा करबला के गम और रंज की याद ताज़ा कर दी। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह ठंडे और मीठे पानी के सबीलों के साथ साथ लंगरों न्याज के वसी इंतजाम किए गए, जबकि मुकामी पुलिस और कानून नाफिज करदा अदारों की तरफ से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद रखी गई। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी। कसूर में भी यौम अशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों में अज़ादारों की भरपूर शिरकत। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों ने जुलजना के जुलूस के गिर्द हसार बनाया। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पानी की सबीलें लगाई गई हैं। शाहकोट में मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई गई हैं। मज़ीद जानते हैं मियाँ बिलाल की इस रिपोर्ट में। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही शाहकोट में पानी, दूध और शरबतों की सबीलों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अकीदतमंद मातमी जुलूसों के रास्तों पर अज़ादारों की प्यास बुझाने के लिए सबीलों का इस्तेमाल करते हैं। शाहकोट में हर साल आने वाले अज़ादारों के लिए सबीलें लगाई जाती हैं। अज़ादार मातमदारी के बाद यहाँ से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। करबला दे विच शहीद होया उन्हां दी याद विच पानी दी छबील लाई दी आ और हर साल लाई दी आ और लंघदियां दोस्तां नूं आवाज मार के असीं पानी पिलाउं। साल दे साल छबील लाने आ। करबला दे विच जिहड़े शहीद होए ने उन्हां दी याददाश्त ताजा करने वास्ते ये असीं पानी लाने। सबीलें लगाना और इन सबीलों से पानी पीने वाले कहते हैं इन सबीलों से पानी पीकर दिल को सुकून मिलता है और क़यामत तक सबीलें लगाते रहेंगे। शुहदाए करबला की याद में अज़ादारों के लिए जुलूस की मकाम पर जगह जगह पर पानी की सबीलें लगाई गई। कैमरामैन जैगम रियाज के साथ। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए जिला खैबर की दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इमरान खान ने थाना मेलूज, बाड़ा और मुल्का चौकियों का दौरा किया। इलाके में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए जिला भर की चेक पोस्टों, चौकियों और अहम शाहराहों पर नाकाबंदी का सिलसिला जारी रखने के अहकाम दिए। ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मिले, बेहतरीन ड्यूटी पर शाबाश थी। CCTV कैमरों का जायजा लिया। दौरान तलाशी और गश्त चौकस रहने और हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल
यकीनी बनाने और ज़िला के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर मशकूक गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवार अफराद पर खड़ी नज़र रखने की हिदायत की। DPO खैबर ने अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम SHOs को रोज़ाना की बुनियाद पर नाकाबंदी और गश्त जारी रखने के अहकाम जारी किए हैं, जिसका मकसद मुआशरे में अमन व अमान बरकरार रखना और आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनानी है। पुलिस अफसरान का कहना है कि शहरी चेकिंग के दौरान पुलिस से ताउन करे। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी और वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी वक़ार मेहदी की 10 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में शिरकत। सूबाई वज़ीर ने नुमाइश चौरंगी पर मुख्तलिफ सबीलों और स्टॉल्स का भी दौरा किया और अज़ादारान को पानी और शरबत की तकसीम में हिस्सा लिया। सईद गनी और वक़ार मेहदी ने नुमाइश चौरंगी पर पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के तहत लगाए गए कैंप का भी मुआयना किया और वहाँ मौजूद कारकुनों को हिदायत दी। सूबाई वज़ीर व मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध ने जुलूस के हमरा कई किलोमीटर का सफ़र तय किया और तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौका पर सईद गनी ने कहा कि यौम आशूर हमें कुर्बानी और सब्र का सबक देता है। आज के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी और आकाए दो जहां के दीन की हिफाजत का जो अमली दर्स दिया है, हमें इस पर साबित कदम रहने के लिए इक़दाम करने होंगे। आज का दिन हमें आलम इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों को यकजा होकर यहूदी और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों से मुकाबला करने और इन्हें शिकस्त देने का दर्स देता है। तला, गैंग शहर और गिरदोनवा में भी यौम आशूर नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस ज़ेर क़यादत साबिक़ कौंसल जवार साजिद हुसैन देवा चौक से बरामद हुआ, जहां पर जंजीर जनी की गई और झूला अली असगर बरामद किया गया। सैयद अजहर शाह एडवोकेट मरहूम बंगला नूर शाह से भी जुलूस बरामद किया गया, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दोबारा हैदरी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। सैयद नफासत शाह की क़यादत में हैदरी इमाम बारगाह से जुलूस निकाला गया, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ दरबार हैदरी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम DSP चौधरी मजहर इकबाल की क़यादत में एहसान तरीके से सर अंजाम दिए गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मुलाजिमीन ने जख्मी अज़ादारों की मरहम पट्टी की। म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर तफसीन नवीद समीर दीगर ने अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दिए। टेक्सला में कमसिन बच्चों ने शहजादा अली असगर के साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए मातमी जुलूस निकाला। टेक्सला के अंदर नन्हे अज़ादारों का ये जुलूस गुज़िश्ता 12 साल से निकाला जा रहा है, जिसमें तमाम बच्चे 10 साल से कम उम्र के होते हैं। इस जुलूस में शबीह जुल्ज़ना की बरामदगी की गई। जुलूस के रास्ते में खाने पीने के अशिया के साथ साथ शरबत, दूध, मुख्तलिफ मशरूबात की भी सबीलें लगाई गई। बच्चों का ये मातमी जुलूस इंजीनियर अरसलान हैदर शाह के घर से बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला पीर हैदर सफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। रज़ाकारों की भी बड़ी तादाद में इस जुलूस में सिक्योरिटी पर मामूर थे। यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। भर में 10 मुहर्रमुल हराम के 27वें जुलूस बरामद हुए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। सियालकोट का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबतौल अड्डा पसूरियाँ और कदीमी जुलूस इमाम बारगाह मिस्त्री अब्दुल्ला से बरामद हो गए हैं। मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों अड्डा पसूरियाँ, कबार रोड, 2 दरवाज़ा खटीका से होता हुआ चौक शहीदा पहुँचेगा। 2:30 बजे दोपहर चौक शहीदा में फलसफा शहादत इमाम अलैहिस्सलाम बयान किया जाएगा। चौक शहीदा से यौम आशूरा का मरकजी जुलूस बाज़ार कलान, लाई बाज़ार, चौक, गुड़ मंडी, जंदर बाज़ार से होता हुआ बहलोल राना पहुंचेगा। 10वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस बहलोल राना कश्मीरी माला से होता हुआ नमाज मगरिबैन के करीब चौक अड्डा पसूरियाँ से इमाम बारगाह दरबतौल पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के अख्ताम पर इमाम बारगाह दरबतौल अड्डा पसूरियाँ में मजलिस शामी गरीबा होगी। कदीमी जुलूस महाराजा रोड बूचड़ खाना से होता हुआ राजा बाज़ार सखी इतबार शाह 2 दरवाज़ा से होता हुआ 1 बजे दोपहर बाज़ार कलां पहुँचेगा, जहाँ नमाज ज़हरैन अदा की जाएगी। 10वीं मुहर्रम का कदीमी जुलूस बाज़ार कलां से होता हुआ
इलाही बाज़ार, गंदम मंडी, जंदर बाज़ार, चौक इमाम साहब से होता हुआ नमाज मगरबैन के बाद चौक इमाम साहब में प्रोफेसर गुलाम हुसैन की रिहाइशगाह पहुँच कर अख्ताम परीज होगा। जुलूस के अख्ताम पर मजलिस शाम गरीबा होगी। मरकजी और कदीमी जुलूसों की निगरानी के लिए 74 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों की मॉनिटरिंग DPO कंट्रोल एंड कमांड रूम से की जाएगी। दोनों जुलूसों में 3600 से ज़ायद पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स के जवान और मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट आपने देखी। चिन्योट के इलाके रजवा सादात में अज़ादारान इमाम हुसैन ने मैदान करबला की मंजर कशी की। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर सुमैर निसार की इस रिपोर्ट में। चिन्योट के इलाका रजवा सादात में अज़ादारान इमाम हुसैन ने वाक़या करबला की मंजर कशी करते हुए सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन और 72 शुहदा की कुर्बानियों की याद ताज़ा कर दी। मकामी जामिया बैसत के तलबा ने रजुआ के मैदान करबला में खैमा हुसैनी, नहर फुरात, टिल्ला ज़ैनबिया समेत जन्नतुल बकी, मल्ला बनी आशम, मकतलगा हुसैन के मॉडल बनाकर लोगों की तवज्जो मबजूल की। जबकि इस मौका पर मकामी अफराद और तलबा का कहना था, पूरा साल ये बच्चे मेहनत करते हैं, उलमाए कराम से दर्स हासिल करते हैं कि किस तरह वाक़या करबला हुआ, और वो बच्चे ये जो नक्श है ये अपने जहन में बिल्कुल महफूज कर लेते हैं। फिर अपनी मदद आपके तहत बच्चे ये कुछ पैसे जमा करके ये सामान वगैरह ख़रीद के ये चीज़ें जो हैं ये अपनी मदद आपके तहत बच्चे जो हैं वो फिर इसको शबी बनाते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। मेरा नाम मनाहिल फातिमा और हम लोग जामिया बैसत के इदारे में यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में कुर्बानी दी थी उसकी शबी बनाते हैं। तलबा का कहना है कि वो पूरा साल पैसे जमा करते हैं और अपनी मदद आप के तहत यकम मुहर्रमुल हराम से इस मंजर कशी को तैयार करने में लग जाते हैं। चिन्योट के इलाका रजुआ सादात के तलबा और असातिज़ा ने शबी करबला बनाकर मार्का हक्को बातल की याद को ताज़ा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा बहावल विक्टोरिया अस्पताल इमरजेंसी में 10 मुहर्रम पर खुसूसी इंतजाम किए गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावल विक्टोरिया अस्पताल इमरजेंसी में 10 मुहर्रम पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्पेशल ड्यूटी लगा के साथ साथ वाफर मिकदार में मेडिसन भी मौजूद है। MS बहावल विक्टोरिया अस्पताल और डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर अमर बुखारी ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौम अशूरा के हिसाब से 9 और 10 मुहर्रम के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। स्पेशली एमरजेंसी में जो पैरामेडिक डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उनकी वाफिर मिकदार यहाँ पे मौजूद है, और जो एसेंशियल मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर किया है। उसके अलावा ये है कि जो हमारे पास अशूरा के दिनों में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, स्पेशली जो एक्सीडेंट के मरीज़ हैं, जो ऐसे कट्स के साथ, माइनर ब्रूजेस के साथ आते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 40 से 50 डेली बढ़ जाती है। तो उनको कैटर करने के लिए सर्जरी के जो यूनिट ऑन कॉल हैं, जो सर्जिकल यूनिट 2 हैं, उनके प्रोफेसर, एसोसिएट और जो उनके जूनियर डॉक्टर हैं इस वक्त मौके पर मौजूद। कैमरामैन कुडम स्टाफ के साथ सियालकोट में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर पंजाब इमरजेंसी सर्विस की खुसूसी हिदायत पर अमल दरामद। यौम आशूर पर रेस्क्यू अमला डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तमाम मरकजी जुलूसों में इमरजेंसी मेडिकल कवरेज के लिए रेस्क्यूअर और रेस्क्यू मुहाफ़िज़ीन पर मबनी मोबाइल मेडिकल टीमें मौजूद। 195 रेस्क्यूअर और 60 रेस्क्यू मुहाफ़िज़ीन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शोहदा करबला की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए न्याज के तौर पर हलीम तैयार। नौजवानों का एक ग्रुप सारी रात मेहनत से हलीम तैयार करता है। मज़ीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। सालों से शोहदा करबला की याद में हलीम तैयार करके नजर हुसैन के तौर पर तस्लीम करने का सिलसिला जारी है। 12 मिसालों गंदम, जू और गोश्त के अलावा दीगर एशिया से तैयार होने वाली हलीम को सारी रात पकाया जाता है और 10 मुहर्रम के दिन तकसीम किया जाता है। हलीम को तैयार करने के लिए सारी रात नौजवानों का ग्रुप मेहनत करते हैं और 10 मुहर्रम को दिन नजर हुसैन के लंगर के तौर पर तकसीम करते हैं। हलीम की तकसीम की यह रवायत गुज़श्ता 50 सालों से जारी है। शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए इस हलीम को सारी रात मेहनत और मोहब्बत के साथ तैयार करके तकसीम किया जाता है। ये हम 10 मुहर्रम के हवाले से न्याज मौला करते हैं, हलीम की न्याज बनाते हैं और बहुत मेहनत होती है, रात पूरी लगती है इसको बनाने में। गोश्त, दालें, बहुत सी चीज़ें डलती है इसमें। ये हम नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर बनाते हैं और हम बहुत मेहनत करते हैं इसके लिए। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये तकरीबन 2-3 घंटे से इस न्याज के लिए आए हुए हैं। तो
बकरा ईद के बाद इसकी तमाम चीज़ें तैयार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें दालें, गंदम, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम इसकी अपने पास खुद साफ करके फिर खुद ठहर के सारी रात और पूरा दिन लगता है, 24 घंटे में इसको तैयार करते हैं। इस अहले इलाका के तमाम लोग और अहले इलाका के बाहर के लोग हमारे पास आते हैं और इमाम मौला की नियाज होती है, आके सब लोग मिल बांट के तकरीबन लंगर हुसैनी करते हैं। यहाँ पर अंदरून शहर में हलीम के बहुत बड़े इंतज़ाम किया जाता है। हम भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आए हैं हलीम की दावत के लिए। लंगर है, ये लंगर पूरी रात चलता है और यहाँ से खानका डोगरा में भी मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। नवासा रसूल, जिगर गोशा बतूल, सरदार जन्नत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानी की याद में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर मुकर्ररा और कदीमी रास्तों पर रवां है। जुलूस में अज़ादारान सीना कोबी, जंजीर जनी और नोहा खानी कर रहे हैं। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। जगह जगह पानी और दूध की सबीलें, नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है। चूनिया में 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस अंदरून किला रोपा सिंह सैयद अल्ताफ हुसैन शाह की रिहाइशगाह से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पुरानी गला मंडी में पहुंचकर एख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के तमाम रास्तों पर अज़ादारान हुसैन नोहा ख्वानी और मातम किया। वाक़या करबला को बयान करते हुए सलाम अकीदत पेश किया। जुलूस के तमाम रास्तों पर जगह जगह शहरियों की जानिब से लंगर और न्याज भी तकसीम की गई। गोचकी में 10 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी से बरामद हुआ। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद खोसा से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। आदिलपुर, मथल और मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हुए हैं। यहाँ पर कुछ मोमिन किराम हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। रवां दवाएँ और मौला हुसैन के गम में हम ये मजलिस अज़ा करते हैं और ये अभी जो काफ़िला है रवान दवा मरकज़ इमाम बारगाह पे जाएगा, वहाँ पे शाम गरीबा की मजलिस होगी, वहाँ पे ये जुलूस मेहर हो जाएगा। जी, ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह मरकज़ी पर इख्तिताम पजीर होगा। और बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल सील कर दिया गया है। रावलपिंडी में योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल हुसैन से बरामद हुआ। 5000 पुलिस एहलकार, रेंजर्स के जवानों समेत FC की बड़ी तादाद जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर। मामूनत के लिए सिविल डिफेंस, नवाई स्कॉच और गर्ल गाइड के दस्ते भी मौजूद। योम आशूर के मौके पर जुड़वा शहरों में डबल सवारी और मोबाइल फ़ोन सर्विस और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है। जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। जुलूस के रास्तों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। सूबाई वज़ीर इंडस्ट्रीज़ और हाउसिंग पंजाब मियां इस्लाम इकबाल और डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चच्चा का ठोकर न्याज़ बेग इमाम बारगाह डोगरा और मॉडल टाउन इमाम बारगाह कसरे बतूल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान रशीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया, डिप्टी डायरेक्टर इमरान मकबूल और दीगर भी हमरा थे। सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल और DC लाहौर ने जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने मुंतज़मीन से इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया। मुंतज़मीन ने बर वक्त बेहतरीन इंतजामात करवाने पर सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल और ज़िले इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वज़ीर मियां इस्लाम इकबाल का कहना था कि जुलूस रूट्स पर आर्जी अस्पताल कायम किए गए हैं, जहाँ हेल्थ और रेस्क्यू 1112 का अमला मौजूद है। जुलूस रूट पर रेंजर्स, सिविल डिफेंस एहलकार और पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद कहना था कि DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम की मदद से भी मरकजी जुलूस रूट्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। MD वासा गफरान अहमद कार्रवाई टाउन का दौरा। गफरान अहमद ने मजालिस रूट्स पर वासा स्टॉफ और वाटर टैंकर्स का मुआयना किया। DMD ऑपरेशन अब्दुल लतीफ़ और डायरेक्टर रावी टाउन राहिल अशरफ भी हमरा थे। तफसीलात जानते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि MD वासा गफरान अहमद का
راوی ٹاؤن کا دورہ، غفران احمد نے مجالس روٹس پر واسطہ سٹاف اور واٹر ٹینکرز کا معائنہ کیا۔ ڈی ایم ڈی آپریشن عبداللطیف اور ڈائریکٹر راوی ٹاؤن راحیل اشرف بھی ہمراہ تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایم ڈی واسا غفران احمد کا راوی ٹاؤن کا دورہ، غفران احمد نے مجالس روٹس پر واسطہ سٹاف اور واٹر ٹینکرز کا معائنہ کیا۔ ڈی ایم ڈی آپریشن عبداللطیف اور ڈائریکٹر راوی ٹاؤن راحیل اشرف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈز قائم کر دیا۔ مخیر حضرات سے سیلاب کی تباہی کا شکار اہل وطن کی دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل۔ بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی ہے، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بے تحاشا نقصانات ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ عوام بالخصوص مخیر حضرات سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ سیلاب کی تباہ کاری کا شکار اہل وطن کی دل کھول کر مدد کریں۔ تاریخی بارشوں نے سیلاب کی صورت قیامت صغری برپا کی ہے۔ بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی ہے، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بے تحاشا نقصانات ہوئے ہیں۔ حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود 5 ارب روپے سیلاب متاثرین کے لیے فوری جاری کر دیے ہیں۔ عوام بالخصوص مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ مشکلات میں گھرے ان پاکستانیوں کو دوبارہ آباد کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ سیلاب متاثرہ بھائیوں، بہنوں اور بچوں کی مدد انصار مدینہ والے جذبے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اہل پاکستان نے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے ملک کے سب سے بڑے سیلاب کے وقت متاثرین کی دل کھول کر مدد کر کے پوری دنیا میں ایک مثال قائم کی تھی، آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ وفاق نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ صوبائی حکومتوں سے بھی گزارش ہے کہ متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیں۔ بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں، واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تانے بانے کھولنے لگے۔ پی ٹی آئی کارکن نے تحریک انصاف کا بانڈا پھوڑ دیا۔ سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے کارکن نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ کہا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا مہم سے متاثر ہو کر اداروں کے خلاف مہم چلائی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی پوری طرح اداروں کے خلاف مخالف مہم میں ملوث ہے۔ ایک اور گواہ سامنے آ گیا۔ عمران خان اور پی ٹی آئی میڈیا سیل نوجوان کو منظم طریقے سے اکسانا ہے۔ قانون کی سخت عملداری قائم ہونے اور حقائق سامنے آنے پر گمراہ نوجوانوں کے ہوش ٹھکانے آنے لگے ہیں۔ اداروں کے خلاف ٹویٹ کرنے والے پی ٹی آئی کارکن پرویز غلام رسول کو غلطی کا احساس، حقائق بتا دیے ہیں۔ عمران خان کی تقریروں میڈیا سیل کے ٹرینڈ سے متاثر ہوا۔ سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کارکن نے کہا، مجھے سنگین غلطی کا احساس ہو گیا، نہایت معذرت خواہ ہوں۔ پرویز غلام رسول کی طرح سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی نے نوجوانوں کو گمراہ کیا ہے۔ میرا نام پرویز غلام رسول ہے۔ میں نے لاشعوری طور پر اور غلطی سے اپنے ملک اور اپنے ملک کی عزیز آرمی کے اوپر غلط ٹویٹس کی، اور یہ سب میرے اپنے طور پہ نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد خان کے شفا ہسپتال اسلام آباد آمد، زیر علاج ایم پی اے ملک لیاقت علی قیادت۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا ملک لیاقت سے ان کے جاں بحق بھائی اور بھتیجے کے لیے اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا، ملک لیاقت اور ساتھیوں پر حملہ بزدلانہ اور قابل مزاحمت فعل ہے، ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کی طرف سے شہباز گل کی گرفتاری کی مذمت۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نے ٹویٹ میں کہا ہے، شہباز گل کی گرفتاری فسطائیت، جبر و استبداد کی اعلیٰ مثال ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے سے عمران خان اور ساتھیوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ایسے فاشسٹ اقدامات حکومتی بوکھلاہٹ کا اظہار ہیں۔ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ شہباز گل کو فی الفور رہا کیا جائے۔
इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत और सियासत में PTI से शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। DPO उकाड़ा हसन इकबाल के अहकामात की रोशनी में DSP रियानाला सर्कल की जेर निगरानी पुलिस ने डकैती के मुलजिमों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मुलजिम अवैस से पिस्टल और एजाज से राइफल बरामद कर ली। मुलजिमों से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलिया, नाजायज मोटरसाइकिल, नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमों से मजीद बरामदगी मुतवक्के है। कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सरजानी टाउन में अफसोसनाक वाक़या, ज़ैनुल आबिदीन नामी 13 साला लड़का ज़ेर तामीर इमारत के जौहर में गिरकर जाम बहक हो गया। मज़ीद जानते हैं अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। मासूम ज़ैनुल आबिदीन डूब कर जां बहक। ये मंजर सीवीओ या किसी समंदर का नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सरजानी टाउन में बनने वाले खूनी प्रोजेक्ट का है, जिस मासूम ज़ैनुल आबिदीन की जान निकल ली। माँ की आह बका सिसकियाँ ना थम सकी। दादा मेरा बेटा दुनिया से चला गया है, 13 साल, मुझे कुछ भी नहीं पता। ज़ैनुल आबिदीन हमें मिलर माफिया को चाहिए कि मांडूवाल खिंचवाए, हमें समझने का इंतजाम करें, मांडूवाल खिंचवाए ताकि दूसरों के बच्चे बन जाए। एक्सपायर हमारा बच्चा हुआ है, एक और बच्चा है, उसकी हालत सीरियस है। इस प्रोजेक्ट में तामीराती काम की वजह से गड्ढे बनाए गए हैं। इन गड्ढों में काफी पानी भी मौजूद है, जिसकी वजह से मासूम ज़ैनुल आबिदीन जां बहक हो गया और इसका दोस्त जो कि ज़ैनुल आबिदीन के साथ था, उसकी हालत तशवीशनाक है। सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, तो इस प्रोजेक्ट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद क्यों नहीं था ताकि इस तरह के हादसात पेश ना आए। और इस तरह की गुंजान आबादी में ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए तमाम कानूनी और कवायद पर अमल दरामद किया गया है या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ अनवार अहमद शेख, KN न्यूज़ कराची। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के ताने बाने खुलने लगे हैं। PTI कारकुन ने तहरीक इंसाफ का बांडा फोड़ दिया। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले कारकुन ने गैर मशरूत माफी मांग ली है। कहा, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया मुहिम से मुतासर होकर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। PTI पूरी तरह इदारों के खिलाफ मुखालिफ मुहिम में मुलविस है। एक और गवाह सामने आ गया। इमरान खान और PTI मीडिया सेल नौजवानों को मुनज़्ज़म तरीके से उकसाता है। कानून की सख्त अमलदारी कायम होने और हकायक सामने आने पर गुमराह नौजवानों के होश ठिकाने आने लगे। इदारों के खिलाफ ट्वीट करने वाले PTI कारकुन परवेज गुलाम रसूल को गलती का एहसास, हकायक बता दिए। इमरान खान की तकरीरों, मीडिया सेल के ट्रेंड्स पर से मुतासिर हुआ। सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में PTI ने नौजवानों को गुमराह किया है। PTI कारकुन ने कहा, मुझे संगीन गलती का एहसास हो गया, नहायत माजरत खा हूँ। परवेज गुलाम रसूल की तरह सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में PTI ने नौजवानों को गुमराह किया है। गुलाम रसूल है। मैंने लाशऊरी तौर पर और गलती से अपने मुल्क और गलत ट्वीट्स की, और ये सब मेरे अपने तौर पे नहीं किया। असल में मैं मौजूदा तौर पे खान साहब की तकरीरें सुनकर और PTI की मीडिया सेल की मौजूदा जो ट्वीट्स पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन ट्रेंड्स को पढ़कर उनसे यानी उनके इन्फ्लुएंस में आकर मैंने इस तरह की ट्वीट कर दी जो कि हमारी चली गई। मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ और बार बार माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने वो लोग हमारे लिए रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं और उन्हीं की वजह से हमारा मुल्क। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।